अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ? ਹਾਇਰ ਆ ਲਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫੋਲਡਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੀਂ ਖਲਿਆਣੇ ਹਾਇਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। CD ਬੈਕ ਐਂਡ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ ਜੀ? npm init। ਓਕੇ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੈਕ ਐਂਡ। ਵਰੀਅਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਵਰੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? 1.0, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਕੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਫ ਫਲਾਂ 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 ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਕੇ। ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ? index.js। ਓਕੇ, ਟੈਸਟ ਕਮਾਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਕੇ। ਗਿਟ ਰੈਪੋजिटरी अगर ऐड करनी है सो ओके। कीवर्ड्स अगर ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ऑथर नेम करना है तो कर लो, नहीं करना तो ये भी ओके, नो इशू। लाइसेंस ISC ओके, एवरीथिंग इज ओके। वो कहता यस यस। ਲੋ ਜੀ, ਬੈਕਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ package.json। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਰਿਐਕਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਟਰ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ। ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਵ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਵ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨੋਡ ਮੌਨ, ਨੋਡਮੋਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਸੌਰੀ ਨੋਡਮੋਨ index.js ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ index.js ਦੀ। index.js ਫਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇजेस ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ npm install express। दूसरा नोडमोन, तीसरा कॉर्स, कॉर्स जी सी, कोई होर भी है, वो याद कर रहे हैं।
खैर जरूरत कर लांगे। और इन्हों ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ। ओके सो लेट्स सी कि पैकेजेस ਵਿੱਚ कॉर्स भी इंस्टॉल हो गया है, एक्सप्रेस भी हो गया और नोडमोन भी हो गया है। ओके हो गया। लो जी हुण ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ? एक्सप्रेस एक्सप्रेस तुसी रिक्वायर कर लिया। फिर दूसरा स्टेप की करना है, इनका ऑब्जेक्ट बनाना है। किस तरह? कांस्ट लेट्स से ऐप, जो भी नाम रखना है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट बनना है। कांस्ट ऐप इज इक्वल टू, फिर सानू पता कि इस ऑब्जेक्ट ने किसी न किसी ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, पोर्ट ਤੇ ਚੱਲਣਾ है। सो ਅਸੀਂ एक पोर्ट ਦਾ ऑब्जेक्ट बना ਲਾਂਗੇ, नॉट ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बना लांगे, कांस्टेंट बना लांगे। कांस्ट पोर्ट इज इक्वल टू 4000, व्हाटएवर 4000 दे रहे हैं। ओके, अब सर्वर को हमने लगाना है लिसन पर, ठीक है। तो ऐप डॉट लिसन, अब लिसन को हमने दो चीजें देनी होती हैं, कौन कौन सी जी? पहले नंबर पे पोर्ट और दूसरे नंबर पे कॉल बैक। कॉल बैक हो गया हमारा, इसमें हम क्या देंगे? console डॉट लॉग सर्वर इज लाइव ऑन, इसका यूआरएल बना लेते हैं, http://localhost : पोर्ट, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको रन। तो क्या कोड था हमारा रन करने की? कमांड क्या थी? npm run dev। ओके, तो ये हमारा यूआरएल बन गया, सर्वर इज लाइव ऑन दिस यूआरएल, localhost : 4000 पे। सर्वर लाइव तो हो गया, कर कुछ नहीं, तो इसको राउट्स बनाने पड़ेंगे। इसको बताना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर राउट होगा तो तुम्हें कुछ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक राउटर बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर राउटर। राउटर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, router.js, ठीक है जी। हमने अपना राउटर क्रिएट करना, राउटर भी एक्सप्रेस से ही क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, कांस्ट राउटर इज इक्वल टू राउटर क्रिएट हो गया हमारा। इसको हम यहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, किसको हमने करना है? राउटर को। ओके, अब इसको उधर इंपोर्ट करके तो इसको वो कर लेते हैं, इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। सो कांस्ट राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से करना है जी? डॉट स्लैश राउटर स्लैश राउटर।
हो गया। अब इसको कहना है कि जी जब भी तुम्हारे पास कॉल आएगी, तुम्हारे पास एक हिट आएगी, तुमने इसको उस राउटर पेज पे भिजवाना, तो कैसे कहेंगे? ऐप डॉट यूज। तो ऐप डॉट यूज पाथ क्या होगा? स्लैश एपीआई स्लैश V1, ताकि कल को हो सकता है वर्जन 2 भी हम क्रिएट करना चाहें, फॉर सम रीजन, फॉर सम अदर पर्पज, हम एक और क्रिएट करें। हमने उसमें V1 लगा दिया। V1 तो ये क्या करेगा जी? राउटर पे राउट कर देगा। ठीक है जी, चलो अब बात आ गई राउटर के पास। राउटर ने क्या करना है? राउटर ने पाथ्स अवेलेबल करने हैं। सो फॉर वट एवर एंटिटी वी आर वर्किंग, उसका एक पाथ होगा। तो फर्स्ट हम सबसे पहले काम कर ले हैं, या हम एक बनाते हैं कंट्रोलर्स का फोल्डर। कंट्रोलर्स, अब कंट्रोलर्स के अंदर हर एक एपीआई के लिए, हर एक एंटिटी के लिए कंट्रोलर बनेगा। तो सबसे पहला कंट्रोलर जो मैं करने जा रहा हूं वो है ऑथ, ऑथेंटिकेशन। ये होगा यूजर के लिए, लॉगिन और साइन अप 2 के लिए। इस तरह एक और मैं बना देता हूं यूजर के लिए, ये होगा यूजर प्रोफाइल के लिए। फाइल बन गई। मतलब ऑथ दो चीजों को डील करेगा, साइन अप, लॉगिन। लेकिन यूजर ने अपनी जो प्रोफाइल अपडेट करनी है वो यूजर का कंट्रोलर उसको करेगा। ओके, सो ऑथ के अंदर हम आते हैं। अब आपको पता है हर कंट्रोलर के लिए दो चीजें बनेगी। कौन कौन सी? उसका फाइल, इंडेक्स फाइल, उसका राउटर, और दूसरा उसका कंट्रोलर। तो यहां हम पहले राउटर बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, और दूसरा ऑथ डॉट, या कर लेते हैं ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो क्या रहेगी? ये कंट्रोलर है। ठीक है, ठीक है। अब इंडेक्स फिर एक राउटर है, तो यहां भी const express is equal to require express const auth router is equal to, किसको लेना है हमने? और इसको कर देना एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, कौन है? ऑथ। अच्छा, अब यहाँ पे काम करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा? वो कंट्रोलर को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश ऑथ कंट्रोलर। ठीक है जी, यार उधर फंक्शंस नहीं इंपोर्ट करने। हाँ जी। अब होता क्या है कि यहां से हमें सिर्फ पाथ बनाने हैं, और उन पाथ के अगेंस्ट जो कॉल बैक कॉल करवाना है वो रखेंगे हम ऑथ कंट्रोलर के। और लॉगिन और लॉगआउट के दो फंक्शंस होंगे, तो यहां हम लॉगिन का फंक्शन बना लेते हैं। तो एक फंक्शन बनेगा जी एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन, और यहां एक पूरा कॉल बैक बन जाएगा।
इसी तरह दूसरा आ जाएगा साइन अप का। अच्छा, अब यहां पे हम दो पाथ बना लेंगे, एक लॉगिन के लिए एक साइन अप के लिए। हर काम के लिए एक पाथ बनना है। सो ऑथ डॉट पोस्ट, पहला बनेगा कौन सा, लॉगिन का। लॉगिन का, और इसमें क्या करेंगे हम, ऑथ डॉट लॉगिन को कॉल करवाएंगे। जब भी ये पाथ पे आए आपने से ऑथ डॉट लॉगिन पे राउट करना है। दूसरा आ जाएगा साइन अप का, तो किस पे राउट करना है, ऑथ डॉट, ओके। अच्छा, अब इसको हमने कॉल करवाना है कहां पे, मेन उसके अंदर, राउटर के अंदर। सो कॉन्स्ट ऑथ राउटर इज इक्वल, रिक्वायर, क्या करेंगे हम, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश और स्लैश इंडेक्स, वहां से उसका राउटर इंडेक्स में पड़ा ना। और यहां से हमने क्या करना है, ऑथ राउटर, सॉरी नॉट ऑथ राउटर, राउटर राउटर डॉट यूज। अब इसको हम पाथ दे रहे हैं कि अगर इसके पास आता है स्लैश ऑथ, ऑथ राउटर है, तो इसने उसको कहां भिजवाना है, ऑथ राउटर पर। तो इसका ऑथ की कॉल आती है तो इसने कहां भिजवा देनी है, क्लियर है। और यहां हम एक छोटी सी गलती कर गए हैं, ओके। अच्छा, ये मेन राउटर हो गया हमारा। अब इसको हमने कॉल करवाना है यहां पर, ये हम करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ दो चीजें हमने कर दी हैं। एक तो उसको क्रॉस ओरिजिन अलाउ करना है कोर्स, और दूसरा हाँ जी, तो हम करते हैं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक हो गया, एक चीज होगी। दूसरी चीज हमने कोर्स को इंक्लूड करना है, कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर, हाँ जी चलो मैं आ रहा हूं, कोर्स, और यहां उसको कहना है ऐप डॉट यूज कोर्स। ऑफ डॉट पोस्ट में कुछ मसला है, गलती, ऑथ राउटर नॉट ऑथ, ये तो बेसिकली गेट पोस्ट राउटर के हैं ना, राउटर। हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हाँ जी। एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है ये उसको अलाउ करता है कि तुम जो रिक्वेस्ट आ रही है ना उसके अंदर जेसन डाटा गुजर सकता है। पोस्ट का डाटा जब आएगा ना, डाटा आना है ना, किस फॉर्म में आना है, जेसन फॉर्म में, तो एक्सप्रेस डॉट जेसन उसे अलाउ करता है कि यहां से आगे आप जेसन डाटा गुजरने दोगे। अगर हम ये लाइन ही ना लिखते
रिक्वेस्ट तो आगे चली जाएगी लेकिन उसके अंदर से डाटा निकाल दिया जाएगा। ये उसे परमिट मिल गया है कि डाटा को आगे जाने देना है। ठीक हो गया। कॉर्स होता है क्रॉस ओरिजिन वो कम्युनिकेशन का। हमने देखा कि हमारा एक सर्वर चल रहा है 5563 पे, दूसरा चल रहा है 4000 पे। ये दो डिफरेंट पोर्ट्स में चलने वाले सर्वर हैं और पोर्ट होती है मेमोरी। क्या होती है? मेमोरी। तो कोई भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अपनी मेमोरी में इंटरफेयर करना अलाउ नहीं करता नॉर्मली। कॉर्स क्या करता है? कॉर्स उन दोनों को बताता है कि भाई साहब आप कनेक्टेड हैं और बिल्कुल आप दूसरे की मेमोरी में इंटरफेयर करने देंगे। जब हमने कॉर्स को सीखा ना एब्रोड यूज कॉर्स कि क्रॉस ओरिजिन जो रिक्वेस्ट तुम्हें आएगी ना, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है, तुम्हें उसको इंटरफेयर करने की इजाजत देनी है। क्लियर है? क्योंकि फ्रंट एंड सर्वर ने डाटा भिजवाना है इसको, उसने इसकी मेमोरी में रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोगों को मैंने ही पढ़ाया खैर से, उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैंने पढ़ाई थी तो उसमें एक वो शेयर्ड मेमोरी मेथड पढ़ाया था मैंने कि एक सर्वर की मेमोरी होती है, एक प्रोसेस की मेमोरी होती है, दूसरा प्रोसेस उसमें अपना डाटा पुट कर देता है। क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से कि इतना एक दफा कर लें।